My lovely students, welcome to Mathological. This is the 19th session of our CAT DILR100 series. In this series, we are doing total 100 DILR sets for CAT 2026 examination. Start करते हैं session. And if you want to search for these sessions, you can always go to my channel and subscribe to the channel as well. अगर अब तक subscribe नहीं किया है तो और साथ में you can also search for a particular DILR by searching DILR100 without any space. Okay, so start करते हैं. And if you have any questions or queries, you can always message me on Telegram at adityakt. So this is our DILR set for today, followed by 6 questions. So pause the video, try to solve it, then only watch the solution. So let us read the set first. A textile factory operates 5 machines to complete 5 fabric orders A, B, C, D, and E. Each machine can weave fabric at 4 different speeds L1, L2, L3, and L4. And the speeds are different. At L1, the speed is 10 meters per minute. At L2, the speed is 15 meters per minute. At L3, that is 20 meters per minute. And at L4, that is 30 meters per minute. The table below shows the partial log sheet for the production runs of the 5 orders. और फिर बाद में हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेंशन है. At fabric made by each machine at every level in meters is an integer. For order A, the time spent at L1 is an integer more than 18, but total viewing time is less than 44.5. For order 3, the total run time is an integer. Also, total fabric produced for the order is between 700 and 800, including both. Only for orders B and D was the fabric woven at L4 more than at L2. Okay, followed by 6 questions. सो टेबल बनाते हैं, एक फ्रेश टेबल बनाते हैं क्योंकि जो ऑलरेडी हमें टेबल गिवन है, यहाँ पे हमें ऑर्डर्स का डेटा गिवन है कि फैब्रिक मेड टोटल फॉर सम ऑर्डर्स इज गिवन, देन टाइम इन मिनट्स एट L2 गिवन है फॉर सम ऑर्डर्स, परसेंटेज ऑफ फैब्रिक मेड एट L1 इज आल्सो गिवन, बट हमें L1, L2, L3, L4 सब के लिए कितना फैब्रिक प्रोड्यूस हुआ, कितने टाइम में हुआ, ये सारी की सारी चीजें हमें चाहिए होगा, जो कि इस टेबल में आ नहीं पाएगा, तो एक फ्रेश टेबल बनाना पड़ेगा. A, B, C, D एंड E. L1, L2 एंड एट एवरी लेवल हम कितना फैब्रिक प्रोड्यूस किया है तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में कितने टाइम में किया है ये भी नोट कर लेंगे, एंड टोटल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मेंशन है उसको ऑलरेडी नोट डाउन कर लेते हैं. सो एट ऑर्डर 2, फॉर ऑर्डर 2 टोटल फैब्रिक मेड इज 740. फॉर ऑर्डर डी टोटल फैब्रिक मेड इज 650. ओके, देन टाइम स्पेंट एट L2, यहाँ से हम फैब्रिक मेड पता लगा सकते हैं बिकॉज L2 का फैब्रिक मेड का स्पीड इज 15 meters per minute. So if 16 minutes are spent for order A at L2, so 16 into 15 will be 240. 240 meters fabric is made in 16 minutes. ब्रैकेट में मिनट्स लिख रहे हैं और साथ में बाहर अपना फैब्रिक मेड. फॉर ऑर्डर बी 10 minutes are spent, तो 150 in 10 minutes. For order C we have no idea right now. For order D that is 10 minutes, तो 150 in 10 minutes. For order E that is 12 minutes, तो 180 in 12 minutes. Okay, ठीक है. तो परसेंटेज ऑफ फैब्रिक मेड एट L1 दैट इज गिवन फॉर 3 ऑर्डर्स C, D एंड E, बट उसमें से हमें D के बारे में पता है कि D में टोटल फैब्रिक मेड इज 650 एंड 20% इज मेड एट L1, तो 20% ऑफ 650 will be 1/5 which is 130. So 130 meters fabric is made at L1 for order D. Or since speed of L1 is 10 meters per minute, the time taken will be 130 by 10 which is equal to 13 minutes. Okay, then for order D ratio of L3 L4 that is M/N एंड डिफरेंस बिटवीन L2 एंड L4 दैट इज 90. बट हमें ये नहीं पता कि L2 हायर होगा या फिर L4 हायर होगा, तो इसके लिए कंडीशंस पढ़ना पड़ेगा. लास्ट कंडीशन, ओनली फॉर ऑर्डर्स B एंड D फैब्रिक वोवन एट L4 was more than fabric woven at L2. So for B and D fabric woven at L4 is more than L2. L4 greater than L2 for B and D. For every other order L4 should be less than L2. So D की हम बात कर रहे हैं, तो D में L4 should be greater than L2 और डिफरेंस आ रहा है 90 का. सो 150 प्लस 90 यानी कि 240 शुड बी फैब्रिक मेड एट फैब्रिक वोवन एट L4 और टाइम टेकन विल बी 30 meters per minute स्पीड है, तो टाइम टेकन विल बी 8 minutes. रिमेनिंग कितना बच गया हमारा? 240, 150, 390, 520 बच गया 130 एंड दिस 130 मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एट L3
and speed of L3 is 20, so 6.5 minutes will be time taken. Total time will be 8 plus 6, 14.5, 24.5, 37.5 minutes. Okay, so D is done. अब बात करते हैं, हाँ, अपना A और B की बात कर लेते हैं. So in A, difference between L2 and L4 is 120, and for A, order A, L2 must be more than L4 because L4 should be less than L2. ठीक है, तो L4 क्या होगा, लेसर होगा, 120 लेस कर देंगे, 240 minus 120 यानी कि 120 will be fabric made at L4 and time taken will be 120 by 30 which is equal to 4 minutes. For order B, 150 का difference आ रहा है, and for order B, L4 should be more than L2. So 150 plus 150 is 300 will be total fabric made at L4 and time taken will be 10 minutes. And the ratio, अच्छा रेशियो तो देखा ही था ऑर्डर ए में, 3:4 का रेशियो आ रहा है. For L3 and L4, the ratio is 3:4. So L3 must be 90 and time taken will be 4.5. For order B, ratio is 2:3. 3 is 300, 2 will be 200. Time will be 10 minutes. Total is 740. So 300 plus 200, 500 plus 100 is 650 and 90 बच गया. So 90 meters will be woven at level 1 in 9 minutes. Okay. ठीक है, अब एडिशन इन्फॉर्मेशन में ऑर्डर ए के लिए क्या गिवन है कि फॉर ऑर्डर ए टाइम स्पेंट वीविंग एट L1 is an integer more than 18 minutes. So time taken at L1, if that is equal to T, so T should be greater than 18, but total weaving time is less than 44.5. Total weaving time क्या होगा, 16 plus 4.5 plus 4 यानी कि 16 plus 4 20, 24.5 plus T, 24.5 plus T, this should be less than 44.5. Okay, this is less than, not less than, equal to, so less than 44.5 यानी कि यहाँ से आ गया T should be less than 20. Now T is greater than 18 but less than 20 यानी कि T must be equal to 19 क्योंकि इंटीजर भी होना है, तो T must be equal to 19, and if T is 19 तो fabric woven will be 190. So 190 plus 245, 430, 520, 640, in total 43.5 minutes. For order B, 9 plus 10, 19 plus 20, 39. So in 39 minutes 740 meters fabric is woven. Now for order E, 60 is the difference, and for order E, L4 should be less than L2. So 180 minus 60 यानी कि 120 and time taken will be 4 minutes and ratio is 5:6. So 100 meters will be fabric woven at L3, time taken will be 5 minutes. Okay, so for order E, 20% is fabric woven at L1. 80% का वैल्यू क्या होगा, 180 plus 100 plus 120. Fabric woven at L2, L3, L4, that total is 280 plus 120, 400. So 400 is equal to 80%. So 20% will be 1/4 यानी कि that is equal to 100. So 100 meters fabric must be woven at level 1 which will be woven in 10 minutes. तो total आ गया हमारा 500 meters fabric woven and time taken will be 10 plus 10, 22, 27, 31. तो A, B, D and E orders are completely done. अब बात करते हैं, फोकस करते हैं for order C. Okay, so for order C क्या क्या given है हमें, 10% is percent of fabric made at L1, 1:1 is the ratio of L3 and L4. The difference is that of 45 and in L2 and L4. और क्योंकि ऑर्डर सी की बात कर रहे हैं हम, तो ऑर्डर सी में क्या होगा, L4 will be less than L2. ठीक है, L4 will be less than L2. Isn't it so? ठीक है, सो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस से L4 पे वी हैव X फैब्रिक इज प्रोड्यूस्ड L4. सो L3 पे कितना हो जाएगा, सेम है क्योंकि 1:1 है. सो X will be fabric produced at L3 also. And in that case, fabric produced at L2, that will be X plus 45. ठीक है, एक सेकेंड, X plus 45, नो नो नो, X plus, हाँ ये है ना 45 है, ऑर्डर सी की बात करें तो X plus 45 हो जाएगा. ओके, एंड 10% फैब्रिक इज मेड एट L1. सो द रिमेनिंग इज 90%. 90% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 90% of total, that is equal to X plus 45 plus X plus X यानी कि that is 3X plus 45. Now 90% since that is a multiple of 9, तो चीजों को और भी आसान करने के लिए हम यहाँ पे X को 3X से रिप्लेस कर देते हैं, so that 3X 9X हो जाए. Okay, so now total will be 9X plus 45. So if 90% is 9X plus 45,
तो यहाँ से 10% का वैल्यू मिल जाएगा विच इज इक्वल टू x प्लस 5. So x plus 5 will be fabric woven at level L1. Total is 10x plus 50. Okay, total आ गया हमारा 10x plus 50. And as per the question, total fabric produced that is between 700 and 800 including both. So 10x plus 50 का value should be between 700 and 800 और 700 800 भी हो सकता है because including both mentioned है. ठीक है, 50 subtract कर दो तो 10x will be between 650 and 750. So x will be between 65 and 75. Any value between 65 and 75. So now second information is more important that for order C, total runtime in minutes is an integer. Total runtime जो हमारा है in minutes that must be integer. That is the condition जो हमें satisfy कराना पड़ेगा इस क्वेश्चन. क्या यहाँ तक अप्रिशिएट कर पा रहे हो चीज़ों को? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इक्वेशन बनाना पड़ेगा इसके लिए. इक्वेशन फ्रेश पेज पे बनाते हैं. कहाँ बनाई जाए? चलो यहाँ बना लेते हैं फ्रेश पेज पे. ठीक है, तो x plus 5 divided by 10 that will be time taken at L1 plus 3x plus 45 divided by 15 plus 3x by 20 plus 3x by 30. ओके, तो 3x by 30 हो जाएगा x by 10. सो हो जाएगा x plus 5 by 10 plus x plus 15 by 5 plus x 3x upon 20 and plus x by 10. ओके, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 20. 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं. फिर एलसीएम अपना एक तरह से हमने ले लिया 20. तो एलसीएम 20 लेते हैं, क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2x plus 10. दिस विल बी 4x plus 60. दिस इज 3x and this will be 2x. टोटल आ जाएगा 5 plus 4 plus 2 11x plus 70 upon 20. Okay, so this will be 11 by 20 times x plus 3.5. And as per the condition of the question, this time must be an integer. Total time should be integer. अब 11 by 20x plus 3.5 this should be an integer. तो 3.5 वैल्यू आ रहा है यहाँ पे. अगर हमें टोटल इंटीजर चाहिए तो 11 by 20 x क्या होना चाहिए? दिस शुड ऑल्सो बी समथिंग 0.5, तभी तो इंटीजर आएगा. ठीक है, और समथिंग 0.5 होने के लिए क्या चाहिए? अगर x हमारा इफ x इज द मल्टीपल ऑफ 20 इन दैट केस हमारा 11 by 20 x विल बी अ इंटीजर. जबकि हमें 11 by 20 x इंटीजर नहीं चाहिए, 11 by 20 x प्लस 3.5 इंटीजर चाहिए. ठीक है, सो x शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ 20. अगर x 10 का भी मल्टीपल नहीं हुआ, मान लो x 5 का मल्टीपल हुआ बट 10 का मल्टीपल नहीं हुआ. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर x मान लो लेटेस्ट से हमने कह दिया x इज इक्वल 25. तो इफ x इज इक्वल 25, जस्ट एक रैंडम एग्जांपल लेना समझाने के लिए. ठीक है, सो दिस विल बी 11 by 20 into 25. सो बेसिकली 11 into 5 by 4 यानी 55 by 4. तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? दिस विल बी 13.75. तो 0.75 आ जाएगा. हमें एंड में 0.5 चाहिए और वो तभी आएगा जबकि x इज द मल्टीपल ऑफ 10. अदरवाइज किसी भी केस में नहीं आएगा. तो x मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 10 बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 20, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए. तो x शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ 10. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, कि 5 का मल्टीपल होगा सिर्फ 10 का नहीं होगा. तो उस केस में हमारा फिर 0.25 आ सकता है, 0.75 आ सकता है. 10 का मल्टीपल होगा 20 का नहीं होगा, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ 10 होगा. सो इन दैट केस 0.5 आएगा एंड में और डेफिनेटली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. 20 का मल्टीपल बन जाएगा तो उस केस में तो फिर इंटीजर ही आ जाएगा अकेला और फिर हमें एंड में पूरा जो सम है इंटीजर नहीं मिलेगा. सो मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 10 और x के लिए हमें लिमिट बताइए कि बिटवीन 65 एंड 75 है. सो x मस्ट बी इक्वल टू 70. ओनली पॉसिबल वैल्यू दैट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन इज व्हेन x इज इक्वल टू 70. ओके, अब फिल अप कर देते हैं वैल्यूज. तो इफ x इज इक्वल टू 70, so this will be 75 and time taken at level 1 will be 7.5. 3x plus 45 will be 255. ये लैग आ रहा है हल्का सा, पता नहीं. ठीक है, 255 and the time taken will be equal to by 15, so that is equal to 17. Then 210 at levels 3 and 4. So time taken at level 3 is equal to 10.5 and at level 4 is equal to 7. Total कितना आ जाएगा? Total is 10x plus 50 that is equal to 750 and time taken is equal to 17
plus 724 plus 1842. तो 750 meters in 42 minutes. So ये complete data हो गया. आप questions को देखते हैं. First question, what is the total runtime spent by the viewing machine on orders A, C and D in minutes? Total runtime. तो order A में time कितना लगा है? 43.5 का. Plus in order C, time is 42 and 37.5 in order D. So total time is 40 plus 30, 70, 81 plus 42, that is 123 minutes. So total time taken will be equal to 123 minutes. Okay. Second question, what is the average quantity of fabric produced at L2 across all 5 orders? Average quantity of fabric produced at L2. तो आंसर क्या आ जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन? L2 पे क्या आ रहा है? 240 प्लस 150 390, 590 प्लस 55, तो 645, 795 और फिर 895 प्लस 80 यानी 975. 975 is total fabric produced across 5 orders for L2. So average will be 975 by 5, which is equal to 195. 195 will be our answer. Third question, if m and n are co-prime numbers, तो find the value of m plus n. और m और n कहाँ पे आ रहा है हमारा? For ratio of fabric L3 and L4 for order D, that is m is to n. Order D के लिए रेशियो क्या है? 130:240. 130:240. और रेशियो में चाहिए इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म बिकॉज m and n should be co-prime, यानी कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर should be equal to 1. So this will be equal to 13:24. So m plus n will be equal to 37. 37. Okay. Fourth question. Which of the 5 orders was completed at the highest average production rate in meters per minute? Highest average production rate in meters per minute overall order. Order B, C, D and E. ठीक है. So order B के लिए वैल्यू आ रहा है 740/39. ऑर्डर C के लिए वैल्यू आ रहा है 750/42. For order D, the value is 650/37.5. And lastly, for order E, that is 500/31. So which should be maximum? देखो, एक तो बेसिक कंपैरिजन भी हमें करना चाहिए हमेशा ऐसे केस में. जैसे फॉर एग्जांपल बी एंड सी आर वेरी क्लोज. बी और सी में डिफरेंस क्या है? बी में क्या है? 7:14 39 मिनट्स, 7:15 42 मिनट्स. तो यहाँ पे मिनट्स में ऑब्जर्व करो तो मिनट्स में हमारा 3 का इंक्रीज आया है, जबकि ओवरऑल टाइम में प्रोडक्शन में इंक्रीज कितना है? 10 मीटर्स का. 10 मीटर्स का 740/39 इज डेफिनेटली बिटवीन 15 एंड 20, रफली 20 के आसपास है. क्योंकि 740/39 क्या 39 का इंटू 20 क्या होगा? 39 इंटू 20 दैट इज 780. और ये 740 वैल्यू है, यानी कि कितना आ रहा है? दिस इज 20 माइनस 40/39, रफली 18.97 के आसपास का वैल्यू आएगा, है कि नहीं? 750/42 की वैल्यू की बात करें तो दिस इज डेफिनेटली मच लेसर, क्योंकि यहाँ पे देखो चेंज आ रहा है हमारा, डिनोमिनेटर 3 से चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर सिर्फ 10 से चेंज हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली दिस विल बी अ लॉट लेसर. तो फिर सी तो आंसर नहीं हो सकता आपका. अगर हम डी की बात करें तो यहाँ पे डिक्रीज कितना आ रहा है? 740 से आ रहा है 650 पे, यानी कि डिक्रीज आ रहा है 90 का. और टाइम में डिक्रीज कितना आ रहा है? 1.5 का. यानी कि टाइम अच्छा खासा लग रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि अगेन हमारा बी ही विनर होगा. बी और ई में से एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो अगेन डी का बी और डी में से तो डी भी आंसर नहीं हो सकता. अब बात करते हैं बी की और फिर लास्ट में ई की. बी और ई की बात करते हैं क्योंकि हमें बी का वैल्यू पता है कि दिस इज अराउंड 19. तो जब तक जो हमारा चेंज आ रहा है टाइम का और प्रोडक्शन का, अगर वो 19 से मतलब वहां पे अगर हम उसको समझ पा रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लेते हैं 740 से आगे 500, यानी कि 240 का डिक्रीज आया. और यहाँ चेंज कितना है? यहाँ है 8 का चेंज आया. ठीक है. यानी कि 8 का चेंज आया, यानी बेसिकली कितना है? 30 का फर्क आ गया. अच्छा खासा फर्क आ गया, है कि नहीं? अच्छा खासा फर्क आ गया, यानी कि प्रोडक्शन तो बहुत कम हो गया है, बट टाइम उस लेवल पे कम नहीं हुआ है. ठीक है. अगर टाइम भी उस लेवल पे कम होता तो मजा आता, फिर शायद चीजें हायर होती हैं यहाँ पे डेफिनेटली. तो यहाँ पे हमें पता है कि बी का ही मैक्सिमम होगा. ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा. अब एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए वो भी निकाल सकते हैं, बट कंपैरिजन ज्यादा आसान होगा हमेशा. ठीक है. कंपैरिजन से चीजें ज्यादा आसान रहेगी. किसी एक की वैल्यू निकाल ली और फिर हमारा आंसर हो गया ऑर्डर बी फॉर श्योर, दैट ऑर्डर बी का जो प्रोडक्शन रेट है वो मैक्सिमम होगा. ठीक है. तो वैल्यू क्या आ जाएगा? अगर हम वैल्यूज अप्रोक्सीमेट करनी ही हो बाकी सबके लिए तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा? 500/31 है. ठीक है. 31 10 प्लस 190 बच गया, तो 10 प्लस 190 यानी कि 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है. 16 पॉइंटिश हमारा आंसर आ रहा है. ठीक है. एग्जैक्ट निकालना होगा तो भी निकल आएगा. 10 हो गया और फिर बचेगा 190. सो यानी कि 16 टाइम्स हमने किया तो 186, 16 एंड 4/31. ठीक है.
ये वैल्यू आ गई हमारी अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट सेम काम यहाँ पे कर सकते हो। 650 बाई 37.5 है तो उसको लग दो 1300 बाई 75 है 25 से, तो आटा पीटी मचा ही दो, तो बच जाएगा 52/3। तो आ गया ये हमारा 17 एंड 1/3। 750/42, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया 250/14 आ गया, 125/7 आ गया इनफैक्ट, और 126/7 होता है हमारा, दैट इज इक्वल टू 18। तो 18 से छोटा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। दिस इज 17 एंड 6/7, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हमने एग्जैक्ट भी निकाल ली, पर जरूरत नहीं था, कंपैरिजन से काम हो रहा था। एक और चीज जो ऑब्जर्व कर सकते थे जैसे क्वेश्चन में, कि देखो क्वेश्चन में एक चीज ऑब्जर्व करो कि हमारा जो स्पीड है वो लगातार जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड बढ़ रहा है। लेवल 1 पे स्पीड इज 10, लेवल 2 पे स्पीड इज 15, लेवल 3 पे स्पीड इज 20, लेवल 4 पे स्पीड इज 30, ठीक है। सो जितना ज्यादा काम, जितना ज्यादा प्रोडक्शन का प्रोपोर्शन लेवल 4 और लेवल 3 पे होगा, उतना ही ज्यादा स्पीड प्रोडक्शन रेट हमारा हायर होगा, इजंट इट सो? तो जहां पे जिस इस केस में हमारा प्रोडक्शन इज हायर एट द हायर एंड एट लेवल 3 एंड लेवल 4, वहां पे प्रोडक्शन रेट हायर होगा। तो ऑब्जर्व करो फॉर बी, टोटल प्रोडक्शन इज 740, आउट ऑफ विच 500 is produced at L3 and L4. Production rate will definitely be higher for B. Similarly for C, a lot of production has been happening at level 3 and level 4. But एक major chunk हमारा B पे हो रहा है, that is why C is not highest. That is why C is less than B. But definitely higher है बाकी cases में। अच्छा, D में भी एक ठीक ठाक लेवल तो हो ही रहा है, बट प्रॉब्लम यह है कि D में फिर हमारा यहाँ पे भी लेवल 1 और लेवल 2 पे भी अच्छा खासा हो रहा है, दैट इज वाई D में ओवरऑल वैल्यू हमारा डाउन आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Question number 5. If the operational cost of running the machine at L1, L2, L3, and L4 are 50, 80, 180, 110, and 160 per minute respectively, so what is the running cost of machine for order C? L1, L2, L3, L4. So time at level C is 7.5, 17, 10.57. And cost is 50, 80, 110, and 160. So 7.5 into 50, that is equal to 375 plus 1360 plus this is 1100 plus 55, 1155 plus 1120, टोटल सम क्या आ जाएगा? आ गया हमारा 1155 प्लस 1120, तो दैट इज 2275, देन 3575, तो 3635, देन 3935, so that is 4010 rupees in total, ठीक है। 4010 rupees is the total running cost of machine for order C. Now last question, a calibration issue during order C caused the machine's L3 speed to drop such that total runtime of the machine for order C increased by 4.5 minutes, ठीक है। तो L3 पे स्पीड ड्रॉप हो गया जिसकी वजह से टाइम हमारा इंक्रीज कर गया 4.5 मिनट से। सो बाय व्हाट स्पीड इन मीटर्स पर मिनट द मशीन्स प्रोडक्शन रेट एट L3 ड्रॉप फॉर ऑर्डर C? तो एज फार एज ऑर्डर C इज कंसर्न, फॉर एट L3 टाइम टेकन वाज 10.5, अगर नॉर्मल स्पीड से चलता 10.5 टाइम होता, बट टाइम इंक्रीज बाय 4.5, यानी कि इंस्टेड ऑफ 10.5 नाउ द टाइम टेकन इज 15 मिनट्स। प्रोडक्शन तो सेम ही हुआ है, तो प्रोडक्शन कितना था यहाँ पे? 210 था, तो 210 स्पीड था इनिशियली 20, बट स्पीड में ड्रॉप आया, दैट इज वाई 15 मिनट्स लग रहा है। तो 210/15, दैट मस्ट बी स्पीड मस्ट बी 14 मीटर्स पर मिनट इंस्टेड ऑफ 20। रिडक्शन कितना आया? रिडक्शन आया 6 मीटर्स पर मिनट का। दिस मस्ट बी द आंसर, दैट रिड्यूस्ड बाय 6, क्योंकि कितने से रिड्यूस किया है ये पूछा है, बाय व्हाट स्पीड द मशीन प्रोडक्शन रेट ड्रॉप। क्या ड्रॉप होके पहुंचा है? 14 आंसर नहीं पूछा है, क्या ड्रॉप हुआ है? तो ड्रॉप इज 6 मीटर्स पर मिनट, आंसर विल बी 6 इन दिस केस। आई अप्रिशिएट कर पाए। सो दिस वाज आवर सेट। आई बिलीव कि सेट की सारी बातें समझ आएंगी। फिर भी कहीं डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। सेशन अगर पसंद आया उसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना। अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में देना, तुम्हें सेशन कैसा लगा, कितने क्वेश्चन तुम अपने एंड पे इजीली कर पाए और कहाँ पे अटके, ठीक है। सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।